Welcome to Ruva Perfect classes. My name is Rachna Rana. Today I am going to discuss about Fibonacci series with recursion. For Fibonacci series with recursion, we will take here the function. That function is Fibonacci function. Here we will take one function that's named Fibonacci, and we will take here int data type and int n, that is the arguments. Int n is a argument. Here if n equal to 0, then return 0, else if n equal to 1, then return 1, else return Fibonacci's n minus 1 plus Fibonacci's n minus 2 function. After that, closing the int Fibonacci function. Now we will write coding of int main function. In int main function, we declare two variables n and I and scan n variable, that is the Fibonacci's of percentage d. N means how many numbers for which we will calculate Fibonacci series, that will be entered at the runtime. For loop is used for running the Fibonacci function. For example, for loop we will take I is equal to 0 and I less than n, I plus plus. If I is equal to 0, then check the condition I is less than n or not. Here we will take n equal to 10, then 0 is less than 10. That means in printf function they call the Fibonacci function. Here Fibonacci function, when we call, we send i's value. I's value is 0 and that value goes into int Fibonacci function. Here arguments is passed int n. Now n's value is 0. It check if n equal to 0, then return 0. Now again it comes here and again repeat i's value increase I plus plus, that means I is equal to 1. Then again Fibonacci's functions calling and cursor is going to int n and n is 1 and check the condition, else if n equal to 1 return 1 and then again return back in int main function and check and increase the i's value, that is I is equal to 2 and 2 is less than 10. Then again call the Fibonacci function and i's value is 2 and now int n's value is 2 and it also check the condition if n is equal 0 or n equal to 1, then it will return 0 or 1. Otherwise it will again call the function Fibonacci n minus 1. Here n minus 1 means 10 minus 1 and plus 10 minus 2. That means, and this function is repeated till the condition goes to the false here in the for loop function. And after the completing the compilation, we will get the result. When we will write here 10 in input, then we get the Fibonacci series 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 and 34. In simple language, we can say that in simple language हम ये कह सकते हैं कि Fibonacci सीरीज क्या होती है, इसमें हम
2 नंबर्स दे देते हैं। जो भी आप 2 नंबर्स इनिशलाइज करोगे, जैसे यहाँ पर मैंने 0 और 1 को इनिशलाइज कर दिया है। अगर आप 2 नंबर्स को स्टार्टिंग में 0 और 1 इनिशलाइज करते हो और उसके बाद इसकी फिबोनाची जो सीरीज बनती है वो इनको प्लस प्लस करके ही बनेगी। जैसे 0 + 1 दैट इज द 1। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, and 21 + 13 that is the 34. But without recursion we take the two variables a is equal to 0, b is equal to 1, and we take the for loop. हम for loop को लेते हैं जिसमें हम i is equal to 2 लिख देते हैं, and i less than नंबर जो भी आपका वेरिएबल आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग आप कंडीशंस को चेक करते हो कि अगर आपकी i की वैल्यू उस जो आपने नंबर एंटर कराया है उससे लेस देन है, उतने टाइम आपकी जो फॉर लूप में लूपिंग है वो उतने टाइम चलती है, वो उतने टाइम उस स्टेप्स को रिपीट करता है और c की वैल्यू को प्लस प्लस करके आगे आपको शो करता रहता है और वैल्यूज को इंटरचेंज करता रहता है विदाउट रिकर्शन में। लेकिन अगर हम विद रिकर्शन करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, एक फिबोनाची फंक्शन बनाया हमने जिसका हमने डेटा टाइप रिटर्न टाइप भी हमने इंट रखा है और उसमें हमने आर्गुमेंट जो पास कर रहे हैं वो भी हम इंटीजर डेटा टाइप का ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर इंट फिबोनाची इंट n लिया है। फिर हमने इस फंक्शन के अंदर कंडीशन लगा दी कि अगर n की वैल्यू 0 आती है तब तो वो रिटर्न 0 करेगा, अगर n की वैल्यू 1 आती है तो रिटर्न 1 करेगा। लेकिन अगर n की वैल्यू 2 आती है, 3 4 5 6 ऐसे आती है तो वो क्या करेगा, एल्स वाले पार्ट को चलाएगा जिसमें क्या लिखा है, रिटर्न फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2। इसका मतलब ये है यहाँ पर आप फिबोनाची फंक्शंस को 2 टाइम कॉल कर रहे हो और उसको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉल किया जा रहा है। फर्स्ट में क्या आ रहा है, 10-1 मीन्स फिबोनाची की जो वैल्यू जाएगी आर्गुमेंट्स की वो कितनी होगी, 9 प्लस फिबोनाची की n-2 का मतलब होगा यहाँ पर 8 वैल्यूज की आएगी। आप रिटर्न वो फंक्शन को कॉल करेगा, देन वैल्यू को चेक करेगा, फिर ये कंडीशन ये वाला फंक्शन जो है वो तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक यहाँ पर फॉर लूप में जो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। मीन्स कि अगर आपने n की वैल्यू 10 लिखी है और i की वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाती है तब तक ये जो प्रोसेस है ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा और इस तरह आपके पास विद रिकर्शन जो है फिबोनाची सीरीज आ जाती है। आप रन पर क्लिक करोगे और कस्टम इनपुट में आपने जो भी नंबर देना है कि 10 नंबर्स के लेना है फिबोनाची सीरीज, 50 नंबर्स 5 नंबर्स की लेनी है, वो आपने यहाँ पर कस्टम इनपुट में लिखना है और आफ्टर द क्लिकिंग ऑन द रन ऑप्शन यू विल गेट द फिबोनाची सीरीज दैट इज 0 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड 34। ये हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको विदाउट रिकर्शन फिबोनाची सीरीज बताया था और आज की वीडियो में मैंने आपको विद रिकर्शन फिबोनाची सीरीज के बारे में बताया है जो फंक्शंस की हेल्प से ही होगा। अगर आपको फंक्शंस की प्रॉपर नॉलेज है तभी आप इसको विद रिकर्शन आप क्या कर सकते हो, फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करवा सकते हो। ऐसे ही आप विद रिकर्शन फैक्टोरियल नंबर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप विदाउट रिकर्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो फैक्टोरियल नंबर्स को। ये वाला जो प्रोग्राम है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे करते हैं, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है आप इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।